فلم پارکر۔ یہ فلم 2013 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ ایک سنسنی خیز کرائم تھرل ہے جو پیشہ ور چوروں کی اس دنیا کو دکھاتی ہے جہاں اصول، وفاداری اور دھوکے کے درمیان ایک باریک لکیر ہوتی ہے۔ یہ فلم ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو چوری تو کرتا ہے مگر اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہی اصول اسے دوسروں سے الگ بھی کرتے ہیں اور خطرے میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ فلم ہر موڑ پر بدلے، انصاف اور انجام کی جھلک دکھاتی ہے۔ رات کی تاریکی میں ایک اصولوں کا پابند چور اپنی دنیا کے سب سے خطرناک کھیل میں داخل ہونے والا ہے۔ پارکر ایک ایسا آدمی جو پیشے سے چور ہے مگر اپنی ایک حد رکھتا ہے۔ وہ چوری کرتا ہے مگر قتل نہیں کرتا اور دھوکہ برداشت نہیں کرتا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب اس کا پرانا ساتھی اور سرپرست ہارلی اسے ایک نئے کام کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ کام بڑا ہے اور ٹیم نئی۔ پارکر کو پسند نہیں کہ وہ انجان لوگوں کے ساتھ کام کرے مگر ہارلی اس پر اعتماد کرتا ہے اور پارکر ہارلی کے فیصلے پر سوال کم نہیں اٹھاتا ہے۔ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں میلنڈر، ہالسن، روز اور ہارڈوگ۔ منصوبہ کیا ہے؟ اوہایو اسٹیٹ فیئر۔ ہزاروں لوگ، شور، روشنی، جھولے، کھیل، موسیقی اور اسی ہجوم میں چھپی ہوئی ایک منظم ڈکیتی۔ پارکر پورا پلان ترتیب دیتا ہے، ہر قدم لمبا قلعہ، کوئی فائرنگ نہیں، کوئی لاش نہیں، صرف پیسہ اور خاموشی سے فرار۔ ڈکیتی کے دن سب کچھ بالکل منصوبے کے مطابق شروع ہوتا ہے۔ ٹیم سیکیورٹی مل کر قابو پاتی ہے، ڈرائیور کو قابو کیا جاتا ہے، عملہ بے بس کر دیا جاتا ہے، سب کچھ قابو میں ہے مگر پھر ہارڈوگ اپنی مرضی سے ایک حرکت کرتا ہے، ایک غیر ضروری گولی چلتی ہے، ایک بے گناہ آدمی مارا جاتا ہے۔ پارکر کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دیتا ہے، یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ ڈکیتی کامیاب ہو جاتی ہے، لاکھوں ڈالر ان کے ہاتھ میں ہے مگر پارکر کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ٹیم اگلے منصوبے ایک بڑی جیول ڈکیتی کی بات کرتی ہے، پارکر صاف انکار کر دیتا ہے۔ میں قتل کے بعد تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ میلنڈر کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اسے پیسے چاہیے، بڑا کھیل کھیلنا ہے اور پارکر ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ پارکر کہتا ہے میرا حصہ دو اور میں چلا جاؤں گا مگر لالچ اکثر عقل کو مار دیتا ہے۔ سڑک کے سنسان حصے پر گاڑی رکتی ہے، بات چیت تلخ ہو جاتی ہے۔ میلنڈر اشارہ کرتا ہے، ہارڈوگ بندوق اٹھاتا ہے، پارکر کو گولی مار دی جاتی ہے۔ وہ زخمی حالت میں سڑک کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے جیسے کوئی کچرا ہو۔ گاڑی دور اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فون میں لگبھگ پارکر سانس لے رہا ہے، زندگی اور موت کے درمیان جھولتا ہوا۔ کچھ دیر بعد ایک کسان خاندان وہاں سے گزرتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہیں، رحم آتا ہے، وہ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ پارکر زندہ ہے اور اب یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں رہا، یہ بدلے کی کہانی بن چکی ہے۔ اسپتال میں نیند بے ہوشی کی حالت میں پارکر کا ذہن ایک ہی چیز سوچ رہا ہے، دھوکہ۔ چند دن بعد وہ اسپتال سے فرار ہو جاتا ہے۔ ہارلی سے رابطہ کرتا ہے، ہارلی پریشان ہے، وہ جانتے ہیں کہ معاملہ آسان نہیں۔ پارکر کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیم اگلے بڑے کھیل کی تیاری میں ہے اور اب وہ فلوریڈا میں ہے۔ پام بیچ، سورج، سمندر، امیر لوگ اور قیمتی زیورات۔ پارکر آہستہ آواز میں کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ لینے آ رہا ہوں اور حساب برابر کرنے بھی۔ زخم ابھی بھرے نہیں تھے مگر پارکر کے ارادے فولاد بن چکے تھے۔ نیولنس کی مردود فضا میں وہ خاموشی سے اپنے اگلے قدم کی تیاری کر رہا تھا۔ ہارلی اس کے سامنے بیٹھا تھا، چہرے پر تشویش نمایاں تھی۔
हर्ली पार्कर से कहता है कि ये लोग मामूली नहीं, इनके पीछे डेंजिंगर खड़ा है। डेंजिंगर शिकागो का ताकतवर माफिया बॉस हार्डविक उनका भतीजा था। अगर पार्कर ने बदला लेने की कोशिश की तो इस आग की लपेट में सिर्फ वो नहीं आएगा बल्कि क्लेयर भी। क्लेयर हर्ली की बेटी और पार्कर की मोहब्बत। हर्ली ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की कि अपना पैसा लेकर चले जाओ, जिंदगी बचाना बदले से ज्यादा अहम है, मगर पार्कर के लहजे में सर्द अज़म था। उन्होंने हद पार की, अब ये उसूल का सवाल है। इसी दौरान खतरा करीब आ चुका था। डेंजिंगर का भेजा हुआ एक कातिल क्लेयर को पकड़ने की कोशिश करता है। अंधेरी पार्किंग में गाड़ियों के दरमियान साए हरकत करते हैं। क्लेयर को शक हो जाता है, वो पर वक्त गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। पैगाम वाज़ेह था, ये खेल अब ज़ाती हो चुका था। पार्कर फ्लोरिडा रवाना होता है, पाम बीच जहाँ दौलत समंदर की लहरों की तरह बहती है। सफ़ेद रेत, जानदार हवेलियाँ और अमीर लोगों की पुरसुकून जिंदगी, जिसके नीचे लालच और साजिश की लहरें चल रही थी। यहाँ पार्कर अपना एक नया रूप अख्तियार करता है। डैनियल पार्मेट टेक्सास का अमीर ऑयल बैरन, महंगा सूट, कीमती गाड़ी, पुरएतमाद लहजा और जाली शनाख्त जो हर्ली के राब्तों ने तैयार की थी। वो एक रियल एस्टेट ऑफिस में दाखिल होता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है लेस्ली रॉजर्स से। लेस्ली एक तलाक याफ्ता औरत जो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गई महसूस करती है। वो महंगे घरों की वो एक स्टेट एजेंट है, मगर खुद अपनी माँ के घर में फ्लैट में रहने पर मजबूर है। पार्मेट की अमीराना अंदाज से मुतासिर होती है। वो उसे शानदार घरों की सैर कराती है। समंदर के किनारे बने महल नुमा मकानात, ऊंची छतें, संगे मरमर के फर्श, नीचे डॉक्स और यार्ड्स। मगर एक घर पर पार्कर की नज़र रुक जाती है। वो घर हाल ही में रॉड्रिगो नामी शख्स ने खरीदा था, मगर घर खाली है। पार्कर खामोशी से मुशाहिदा करता है। दरवाजे, खिड़कियाँ, सिक्योरिटी, एक गिफ्ट का माहौल, सब कुछ उसके जहन में नक्श हो रहा था। लेस्ली महसूस करती है ये आदमी आम खरीदार नहीं। शाम को वो पार्कर को डिनर की पेशकश करती है, शायद किस्मत बदल जाए, मगर पार्कर इनकार कर देता है। उसकी दुनिया में जज्बात के लिए जगह कम है, लेकिन लेस्ली आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। वो पार्मेट की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है। नतीजा चौंका देने वाला है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई माजी नहीं, सब कुछ जाली। अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। लेस्ली के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों जन्म लेते हैं। ये शख्स कौन है? रॉड्रिगो के खाली घर में उसकी दिलचस्पी क्यों है? दूसरी तरफ पार्कर को यकीन हो चुका था मेलिंडा और उसकी टीम उसी घर को आरजी ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये उनका था। पार्कर तन्हा है, मगर उसके पास वक्त कम है। बदला करीब है और पाम बीच की चमकती हुई धूप के नीचे एक खूनी खेल शुरू होने वाला है। लेस्ली ने जब डैनियल पार्मेट की जाली शनाख्त का राज जाना तो उसके जहन में सवालों का सैलाब उमड़ आया। वो डरी हुई भी थी और अजीब कश्मकश में मुब्तला भी। उसकी ज़िंदगी पहले ही बिखरी हुई थी। तलाक के बाद माली मसाइल, माँ के तंग अपार्टमेंट में रहना और रोज़ाना अमीरों को उनके ख्वाबों जैसे घर दिखाना, मगर खुद इन ख्वाबों से कोसों दूर। शायद यही वजह थी कि जब पार्कर ने उसे सच का एक हिस्सा बताया कि वो एक खतरनाक खेल में शामिल है, तो वो पीछे न हटी। पार्कर ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं, अपना हिसाब लेने आया हूँ। लेस्ली के लिए सब किसी फिल्मी मंजर से कम ना था, मगर हकीकत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसी दौरान डेंजिंगर का भेजा हुआ कातिल पाम बीच पहुँच चुका था। एक रात पार्कर अपने होटल के कमरे में तन्हा था। वो नक्शे देख रहा था, घर की साफ जहन में दोहरा रहा था, अगले कदम की तैयारी कर रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पार्कर चौंका नहीं, उसने बंदूक की तरफ हाथ उठाया। दरवाज़ा खुला और कातिल अंदर दाखिल हुआ। चंद लम्हों में कमरा मैदान चंद बन गया। मुक्कों की आवाज़, फर्नीचर का टूटना, गोलियों की धमक, हर चीज़ एक ही लम्हे में वक़्फ़ पज़ीर हुई। कातिल ताकतवर था, मगर पार्कर ज़्यादा तजर्बाकार। शदीद झड़प के बाद पार्कर ने उसे बालकोनी की तरफ धकेला। एक आखिरी जोर और कातिल नीचे गिरता चला गया। पार्कर जख्मी था, खून से बाजू से खून बह रहा था, मगर वक्त ज़ाया करने का मौका नहीं था। वो
फौरन होटल छोड़ देता है। इसी दौरान एक और मसला जन्म लेता है। एक पुलिस अफसर लेस्ली के घर पर पहुंचता है। वो डैनियल कार्मिक के बारे में सवालात कर रहा है क्योंकि होटल में होने वाले तसादुम की खबर मिल चुकी थी और लेस्ली ने उसे मकानात दिखाए थे। लेस्ली घबरा जाती है मगर खुद को संभालती है। मैं आपको इन तमाम घरों की फहरिस्त में दूंगी जो मैंने उसे दिखाई थी। पुलिस वाला वक्ती तौर पर मुतमईन होकर चला जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही लेस्ली रोकती है और उसकी सांस रुक जाती है। दरवाजे के बाहर साये में खून में लगभग पाकर खड़ा था। वो अंदर आता है, कमज़ोर मगर आंखों में वही सर्द आज़म। लेस्ली के लिए वापसी का रास्ता नहीं था। उसके जख्म साफ करती है, पट्टियाँ बांधती है, पाकर दर्द को नजरअंदाज करता हुआ नक्शा खोल लेता है। आज रात वो वार करेंगे। जूल ऑक्शन उनका अगला हदफ है। लेस्ली चौंक जाती है, आज रात तुम इस हालत में? पार्कर जवाब मुख्तसर था, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उधर मेलिंडा और उसकी टीम आखिरी तैयारियों में मसरूफ थी। ऑक्शन हॉल में महंगे जेवरात की नुमाइश थी। दुनिया भर के खरीदार करोड़ों डॉलर मालियात के हीरे और नायाब जवाहरात। मेलिंडा का मंसूबा था, पहले वो हॉल में जाकर स्पीकर में आतिशबाजी का सामान नस्ब करेगा, बाद में फायर फाइटर्स के भेस में दाखिल होंगे। अफरा तफरी, धुआं, चीखें और इसी हंगामे में माल साफ। पार्कर जानता था कि वो सीधा ऑक्शन पर हमला नहीं करेगा, वो उनके अड्डे पर इंतज़ार करेगा। वो पहले उस खाली घर में घुस चुका था, वहाँ असला छुपा दिया था और सबसे अहम उनके हथियारों के फायरिंग पिन खराब कर दिए थे। जब वो लौट कर आएंगे तो खेल बदल चुका होगा। लेस्ली उसे देखती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पार्कर की आंखों में लम्हा भर के लिए नरमी आती है मगर वो जानता है आज की रात खून से निकली जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। पाम बीच की रोशन सड़कों के पीछे एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसमें जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा और हारने वाला जान। जूल ऑक्शन हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। दुनिया भर के अमीर खरीदार अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे। कीमती हीरे शीशों के अंदर चमक रहे थे। हर बोली के साथ कीमत बढ़ रही थी और लालच भी। मगर इस चमक के पीछे मेलिंडा और उसकी टीम अपना जाल बुन चुकी थी। कुछ घंटे पहले वो आम अमले के भेस में अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने साउंड सिस्टम के अंदर आतिशबाजी के छोटे धमाके खेज आलात फिट कर दिए थे। सब कुछ हिसाब से वक्त पर फटने के लिए तैयार। और फिर अचानक हॉल में जोरदार धमाके खोल उठे। हर तरफ धुआं, शोर और अफरा तफरी। लोग चीखने लगे, सिक्योरिटी भाग दौड़ में लग गई। उसी लम्हे दरवाजे खुले और फायर फाइटर्स की टीम अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो असल फायर फाइटर्स नहीं थे। वो मेलिंडा, कॉल्सन, रोज और हार्डविक थे। उन्होंने महारत से जेवरात अपने खुसूसी बैग्स में भरे। चंद मिनटों में करोड़ों डॉलर के हीरे उनके कब्जे में थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक। वो हंगामे का फायदा उठाते हुए पिछले रास्तों से निकले और एक कश्ती की तरफ बढ़े। समंदर की सियाह लहरें उनके फरार का रास्ता बन गई। उधर पार्कर पहले ही उनके खाली घर के अंदर मौजूद था। कमरा तारीक था, सिर्फ उसकी सांसों की हल्की आवाज़। उसने पहले ही असला मुख्तलिफ जगहों पर छुपा दिया था और सबसे अहम उनकी बंदूकों के फायरिंग पिन मोड़ दिए थे। जब वो गोली चलाने की कोशिश करेंगे बंदूक साथ नहीं देगी। दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। मेलिंडा और उसकी टीम हंसते हुए अंदर दाखिल हुई। ये तो आसान था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि असल तूफान अभी बाकी है। पार्कर निकलता है, बंदूक सीधी मेलिंडा पर लगी हुई। मेरा हिस्सा और हिसाब बराबर करो। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है मगर अचानक दरवाजे की एक और आवाज़ सुनाई देती है। लेस्ली वो पार्कर को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई थी। मेलिंडा फौरन उसे पकड़ लेता है, बंदूक उसके सर पर रख देता है। लगता है तुम अकेले नहीं आए। सूरत हाल पलट चुकी थी। कॉल्सन और रॉस अपनी बंदूकें उठाते हैं मगर जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं, क्लिक, कोई गोली नहीं चलती। हैरत उनके चेहरों पर साफ झलकने लगती है। पार्कर मौके का फ़ायदा उठाता है। वो अपने छुपाए हुए असले तक पहुंचता है। गोलियों की आवाज़ कमरे में गूंज उठती है। कॉल्सन गिरता है, रॉस जमीन पर ढेर हो जाता है। हार्डविक पार्कर पर झपटता है मगर जख्मी होने के बावजूद पार्कर उसे काबू कर लेता है। मेलिंडा आखिरी मुकाबला करता है। उसकी आंखों में नफरत है। ये सब पैसे के लिए था।
पार्कर संजीदगी में जवाब देता है, नहीं, ये उसूल के लिए था। आखिरी गोली चलती है, कमरा खामोश हो जाता है, सिर्फ सांसों की आवाज़ बाकी रहती है। लेस्ली कांप रही है, उसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा था। पार्कर ज़ेवरात से भरा बैग उठाता है, वो लेस्ली की तरफ देखता है, इन्हें संभाल कर रखो, अभी फरोख्त नहीं कर सकते, वक्त आएगा तो मैं रब्ता करूँगा। लेस्ली की आंखों में हैरत, खौफ, एक नई खुद एतमादी थी। पार्कर अपना बदला ले चुका था, मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। शिकागो में एक और नाम बाकी था, डैन जिंगर। शिकागो, वो शहर जहाँ ताकत पैसे से नहीं खौफ से नापी जाती है। डैन जिंगर, वो नाम जिसके साए में मेलिंडा जैसे लोग पलते थे। आगे उसका भतीजा था और पार्कर ने उसे मार दिया था। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये ऐलान जंग था। मुहाफिज मौजूद मगर बेफिक्र, क्योंकि उन्हें यकीन है कि कोई उन तक पहुँच ही नहीं सकता, मगर वो पार्कर को नहीं जानते। एक दिन ठीक उस वक्त जब डैन जिंगर अपने दफ्तर में अकेला होता है, दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता है। डैन जिंगर सर उठाता है, सामने पार्कर खड़ा है, चंद लम्हे खामोश। डैन जिंगर मुस्कुराता है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। पार्कर की आंखों में न गुस्सा है न नफरत, सिर्फ सख्त फैसला, तुमने गलत लोगों को चुना था। डैन जिंगर बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाता है, मगर देर हो चुकी थी। गोली की आवाज़ कमरे में गूंजती है, एक बार ख़त्म हो जाता है। पार्कर बाहर निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वक्त गुजरता है, 1.5 साल बाद बीच में लेस्ली अब वो औरत नहीं रही जो अपनी माँ के अपार्टमेंट में कैद थी। एक दिन उसे डाक में एक लिफाफा मिलता है, अंदर पैसे और एक मुख्तसर पैगाम, ये उसका हिस्सा था। पार्कर ने वादा निभाया। दूसरी तरफ वो किसान खानदान जिन्होंने उसे सड़क किनारे जख्मी हालत में पाया था, उन्हें भी एक दिन अचानक माली मदद मौसूल होती है। कोई नाम नहीं, कोई शनाख्त नहीं, मगर वो जानते हैं ये उस आदमी की तरफ से है जिसे उन्होंने ज़िंदगी दी। पार्कर की दुनिया के उसूल सादा हैं, धोखा दोगे हिसाब होगा, हिस्सा दोगे इंसाफ मिलेगा। अगर कोई उसके करीब आने वाले को ख़तरे में डालेगा तो वो कभी नहीं भूलेगा। वो हीरो नहीं, वो विलन भी नहीं, वो सिर्फ एक पेशावर है अपने उसूलों के साथ। और कहीं ना कहीं एक और शहर में एक और काम की तैयारी हो रही है, क्योंकि पार्कर जैसे लोग रिटायर्ड नहीं होते, बस अगले खेल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये इख्तिताम इस बात की अलामत है कि पार्कर की ज़िंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा खतरा, असला, धोखा और इंतकाम, दूसरा हिस्सा खामोश मोहब्बत और ज़ाती उसूल, और वो दोनों को अलग रखना जानता है।